Hello everyone, I welcome you all to today's lecture. I am Shell, your new educator on CSI NET Life Science category, and today we are here for 30-minute session as we are having YouTube festival, so we are having 30-minute session each, and today we will talk about cytoskeleton. Within 30 minutes we'll try to finish, so we will just see the basics as to what are the different types of components of the what are the different components of the cytoskeleton, their functions, and their building blocks or the proteins by which they are made of, their functions. That's all. We will only see the types and functions today, and once or twice it has been asked in NET also the functions of different types of cytoskeleton, so it is important in that respect also. So we will just try to cover the basics within 30 minutes. So before that, I just want to ask whether I am visible and audible. Whether I am visible and audible. Can anyone message me? Whether I am visible or audible. So today's session basically will be of 30 minutes only, and we will just see the basics. Can anyone message me whether I am visible and audible or not? Can anyone message me? We will just study cytoskeleton basics. Before that, I want to talk something about Unacademy. So this is our channel, Unacademy CSI NET. I suggest you all to subscribe the channel so that you can get notification of the classes of all the educators, as well as you will get to learn from various videos also. There are live classes held every day from all the educators on this platform, as well as those live classes are available in recorded form also, so you can go through those videos whenever you want to if you subscribe to this channel. Then you can get the subscription of Unacademy by downloading the Unacademy Learners app from Play Store, and from this app you have to get subscription, and there are two types of subscription: Plus and Iconic. Plus Iconic subscription. In Plus subscription, you will get to learn from India's best educators. There will be interactive live classes, structured courses and PDFs, live tests and quizzes. So basic difference will be you will get to solve many questions. There will be many tests and quizzes held on the Unacademy app under Plus subscription. Then there are two types, as I have told. In Iconic subscription, you will get to learn from India's best educators. That is, along with these benefits, you will have a personal coach who will assist you 24/7 in clearing your doubts. Okay, Priyanka, hi. And you will have a personalized doubt clearing session always, and there will be interview preparations also on buying Iconic subscription. First, you have to download the Unacademy Learners app from Play Store, and you have to use one code SHELL-K10. By using this code, you will be able to unlock the special classes, special classes which were live, but now they will be also present in recorded form. These will be free. You can watch them also by using this code, as well as you can buy these subscriptions, and if you use this code you will have 10% off. Then batches are starting every Wednesday, or every now and then new batches are started, so you can buy the subscription and can join any batch. Then these are the India's best educators. You will get to learn from these educators on this platform. Then many types of new courses are also available, that like Unacademy Accelerate for chemical sciences and physical sciences. Once you buy the subscription, you can get to know about these things, which you can refer to your friends also. Then these are the faculty members of mathematical sciences. So you have to basically download the app and get subscription.
then you can buy at least either 1 month or 3 month or 4 month, 12 month or 24 month subscription, and there are different price ranges for these subscriptions, and you can also pay in EMI. Just you have to remember, you have to use code SHELD-K10 to avail 10% discount on your final order. So cytoskeleton, today we are reading. Good afternoon DFTS, pata nahi, Roshan Raman, good afternoon. So today's topic cytoskeleton, I am covering from Molecular Biology of the Cell 6th edition, Albert's. So Albert's book, from this book I am covering cytoskeleton, just the basic part, the types of cytoskeleton and their function, so that you can remember the function very well. Very few sometimes questions also come from this section also. So the introduction part, what are cytoskeleton? See, like our body is having bones, हमारी बॉडी में बोन्स है, मसल्स है एंड जॉइंट्स है, ठीक है. तो बोन्स बहुत सारे टाइप के हैं, मसल्स टाइप के हैं, जॉइंट्स भी बहुत सारे टाइप के हैं. इन तीनों के मिलने से हमारी बॉडी में बनते हैं स्केलेटल सिस्टम. हमारी बॉडी को स्केलेटल सिस्टम मिलता है, और इस स्केलेटल सिस्टम की वजह से हमारी बॉडी क्या कर पाती है, मूव कर पाती है. हमारी बॉडी को एक शेप मिलता है, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलता है, हम हमारे बॉडी पार्ट्स को मूव कर पाते हैं, हम किसी के साथ ऐसे हाथ मिला सकते हैं, उनसे सामान ले सकते हैं, उन्हें सामान दे सकते हैं, बहुत सारे काम कर पाते हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम की वजह से. उसी तरह से हमारे सेल के पास भी एक स्केलेटल सिस्टम है जिसको बोलते हैं साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन, जिस तरह से बोन्स, मसल्स और जॉइंट्स, ये 3 टाइप के कंपोनेंट्स की वजह से स्केलेटल सिस्टम बनता है, उसी तरह से साइटोस्केलेटन 3 कंपोनेंट्स की वजह से बनता है. कौन कौन से वो 3 कंपोनेंट्स हैं? वो 3 कंपोनेंट्स हैं एक्टिन फिलामेंट, देन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. ठीक है, एक्टिन फिलामेंट को माइक्रोफिलामेंट भी कहते हैं. तो बेसिकली हमारी बॉडी में बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स, ये तीनों अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये तीनों मिलके क्या करते हैं, हमारी बॉडी को स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी का बनाते हैं. उसी तरह से 3 तरह के फिलामेंट्स हैं हमारी बॉडी में. हमारे सेल्स में एक्चुअली फिलामेंट्स होते हैं जो कि इसके स्केलेटन की तरह काम करते हैं. फिलामेंट्स मतलब लंबे लंबे वायर की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इन तीनों फिलामेंट्स की वजह से हमारे सेल को एक स्केलेटल सपोर्ट मिलता है, जैसे हमारी बॉडी को एक स्केलेटल सपोर्ट मिलता है. उनके नाम है एक्टिन फिलामेंट, जिसको माइक्रोफिलामेंट भी कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट. ठीक है, एक्चुअली में ऐसा होता है कि हमारे सेल के अंदर, जिस तरह से हमारे शहरों में क्या होता है, पोल्स होते हैं और बहुत सारे वायर्स यहाँ से वहाँ लगे रहते हैं. फिर आपने देखा होगा रोप वेज. देखा मैम, इट इज़ अ सेपरेट टॉपिक. इज इट अ सेपरेट टॉपिक? यस, इट इज़ जस्ट अ स्मॉल टॉपिक, क्योंकि यूट्यूब फेस्टिवल चल रहा है, तो उसमें हम लोग कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं. आज शाम को 7 बजे हम अपना नॉर्मल क्लास करेंगे, लेकिन जिस तरह से मैंने फाइलोजेनेटिक ट्री पढ़ाया था, देन टोपोलॉजी पिछले क्लास में पढ़ाया था अलग सा, वैसे ये 30 मिनट्स में कवर होने वाला क्लास होगा, डोंट वरी. तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, ताकि इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन कभी कभी आता है, तो इसको अगर आप थोड़ा सा आइडिया बना लेंगे ना, तो वो 1 या 2 क्वेश्चन कवर हो जाएगा. और 7 बजे हम पढ़ेंगे आज रिवीजन. हमारा आज मैराथन क्लास होगा, रिवीजन और डाउट क्लियरिंग, वो 7 बजे होगा. और अभी 5 बजे सेक्शन 1 के ऊपर डिस्कशन होने वाला है. तो जस्ट ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है बेटा. तो हमारे सेल में बहुत सारे ऐसे फिलामेंट्स होते हैं. अच्छा, आपने रोप वेज देखा होगा, जो माउंटेनस रीजन्स में रोप वेज होते हैं, वो रोप्स लगे होते हैं एक हिल से दूसरे हिल के ऊपर, और फिर वहाँ पे एक ऐसा होता है ना, ऐसा रोप होता है, इसमें ऐसा एक कैरियज होता है, इसमें लोग बैठ के यहाँ से वहाँ जाते हैं. ऐसे हमारे सेल में भी हर तरफ बहुत सारे फिलामेंट्स होते हैं. इन फिलामेंट्स को 3 तरह के हैं ये फिलामेंट्स. एक्टिन फिलामेंट, जिसको माइक्रोफिलामेंट कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट. ये 3 तरह के फिलामेंट्स पूरे सेल के अंदर सब जगह बिखरे हुए हैं. पूरा हर कॉर्नर में सेल्स के ये तीनों तरह के फिलामेंट्स हैं, और इसकी वजह से हमारे सेल को शेप मिलता है. कुना, गुड आफ्टरनून. ओके प्रियंका, थैंक यू.
तो इन फिलामेंट्स की वजह से हमारे सेल को एक शेप मिलता है, हमारा सेल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, क्योंकि आपको पता है सेल को मूवमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर हमारे सेल को पर्टिकुलर शेप मिलता है। फिर जैसे कि अमीबा 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 कैसे एक अपने खाने की तरफ मूव करता है, स्यूडोपोडिया बना के ऐसे बनाता है ना स्यूडोपोडिया, ये स्यूडोपोडिया बना पाता है। देन हमारे वाइट ब्लड सेल्स किसी एंटीजन यानी किसी पैथोजन जो हमारे बॉडी में घुस जाता है, फॉरेन बॉडी, उसके ऊपर अटैक करते हैं, वो भी इसी तरह से धीरे धीरे करके मूव करते हैं आगे की तरफ। तो सेल मूवमेंट, देन सेल की स्टेबिलिटी, देन सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स का पोजीशनिंग, फिर सेल के अंदर जो सामान यहाँ से वहाँ जाता है, जैसे कि गोल्गी बॉडी जो होता है, गोल्गी बॉडी क्या करता है, ये हमारा पैकेजिंग सेंटर है, प्रोटीन्स को पैक करके ऐसे वेसिकल्स में एक जगह से दूसरी जगह भेजता है सेल के। तो ये हमारा सेल अगर है, यहाँ पे समझ लीजिए गोल्गी बॉडी है, तो इसको पैकेट करके सेल को प्रोटीन भेजना है मेम्ब्रेन की तरफ, क्योंकि गोल्गी बॉडी सेल के हर पार्ट के लिए प्रोटीन बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या लाइसोसोम हो या राइबोसोम हो या सेल मेम्ब्रेन हो, सबके लिए प्रोटीन्स बनाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन्स बनाता है ये जाता कैसे है, फिर ये गोल्गी बॉडी से सेल सरफेस पे कैसे चला जाता है। तो सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट, सेल का मूवमेंट, सेल की स्टेबिलिटी, सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स का मूवमेंट, सेल के अंदर ऑर्गेनेल की पोजीशनिंग, देन सेल डिवीजन, देन सीलिया, देन फ्लैजेला, ये सारी चीज़ों में हमें साइटोस्केलेटन हेल्प करते हैं। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन बेसिकली करते क्या है, इट हेल्प्स द सेल टू ऑर्गेनाइज देमसेल्स इन स्पेस एंड इंटरैक्ट मैकेनिकली विथ ईच अदर। जैसे कि समझ लीजिए ये सेल है, कभी सोचा आपने सेल के बाहर क्या होता है, सेल के बीच के स्पेस को कहते हैं, दो सेल के बीच के स्पेस को कहते हैं इंटर सेल्यूलर स्पेस, इंटर सेल्यूलर स्पेस। ठीक है, और एक सेल अगर पकड़ लिया, उसके आसपास के एनवायरनमेंट को कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। एक्चुअली में एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस एक इमेजिनरी स्पेस है। अगर हम एक सेल को पढ़ना चाहते हैं तो हम उस सेल को पढ़ेंगे, उसके आसपास के एनवायरनमेंट को देखेंगे। तो जैसे कि ये सेल है, इसके आसपास का सब चीज़, ये सब चीज़ हो गया एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। लेकिन यही सेल और दो सेल के बीच के स्पेस की बात की जाएगी तो वो हो जाएगा इंट्रा सेल्यूलर स्पेस। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस क्या होता है, तो दो सेल के बीच का स्पेस, दो सेल के बीच का स्पेस हो गया इंट्रा सेल्यूलर स्पेस, और एक सेल के बाहर का एनवायरनमेंट को कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस है, इससे सेल कैसे इंटरैक्ट करेगा, उसके अंदर कैसे रहेगा, ये सारी चीज़ों में उसको साइटोस्केलेटन हेल्प करता है। आई होप मैंने साइटोस्केलेटन के ऊपर एक ब्रीफ डिस्कशन कर दिया कि साइटोस्केलेटन मतलब होता है वो सारा चीज़ सेल के अंदर में, वो सारे 3 तरह के फिलामेंट्स जो कि सेल को डिफरेंट फंक्शंस में हेल्प करते हैं। उनके क्या क्या नाम है आपको हमेशा याद रखना है, एक्टिन फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, देन माइक्रोट्यूब्यूल एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट, रूपकथा विश्वास मैम, विल यू कंप्लीट होल साइटोस्केलेटन फॉर CSI नेट? नो, दिस इज़ जस्ट वन इंट्रोडक्टरी क्लास। आज क्योंकि यूट्यूब फेस्टिवल है, मैं अभी 7 बजे जो मेन मेरा क्लास चलता है उसमें मैं DNA स्ट्रक्चर कंप्लीट करा रही हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज शाम को 7 बजे ऑलमोस्ट पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया है। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं टॉपिक्स को यहाँ पे कंप्लीट नहीं कराऊंगी, मैं सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कराऊंगी अलॉन्ग विथ प्रैक्टिस। तो आज शाम को हमारा DNA स्ट्रक्चर पूरा ख़त्म हो चुका है लेनिंजर और वाटसन से। आप पूरे मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं, 10 लेक्चर्स हैं पूरे, तो उसमें मैंने पूरे टॉपिक को ख़त्म किया है। फिर आज शाम को हम रिवीजन करेंगे, डाउट क्लियर, कल हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम नए टॉपिक पे एंटर करेंगे। एक्चुअली शाम को 7 बजे मेरी मेजर क्लास होती है। अभी क्या है, एक ऐसी माइनर क्लास है क्योंकि अभी यूट्यूब फेस्टिवल चल रहा है 2 दिन का। इसमें हमें कुछ स्पेशल टॉपिक्स लेके आने होते हैं जो कि जस्ट आपको कुछ एक फ्रेश फील दे सके और आपको बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पता चले। तो साइटोस्केलेटन हम लेंगे बाद में जब हमें पढ़ना होगा। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है CSI नेट के लिए, आपको साइटोस्केलेटन पूरा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या क्या पढ़ना है साइटोस्केलेटन में मैं बता देती हूँ, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो। 3 तरह के हैं ना, एक्टिन फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। आपको एक्टिन फिलामेंट का ट्रेडमिलिंग पढ़ना है, ठीक है, और माइक्रोट्यूब्यूल का आपको सीलिया फ्लैजेला का स्ट्रक्चर देखना है। देन आपको इंटरमीडिएट फिलामेंट का डिफरेंट मतलब लैमिनिन के बारे में पढ़ना है थोड़ा बहुत, फिर मोटर प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा सा जानना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। ठीक है,
तो इस टॉपिक में आपको ज़्यादा कवर नहीं करना है। अगर आप थोड़ा बहुत होगा तो प्रियंका, यस 11 लेक्चर्स है, ओके थैंक यू प्रियंका। तो 11 लेक्चर्स है डीएनए स्ट्रक्चर के। अभी इसका प्लेलिस्ट नहीं बना है, लेकिन आज शाम तक या कल तक आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप उसको पूरा 1 to 1 वॉच करेंगे तो सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। लेनिंजर वाटसन पूरा कवर किया गया है। जो थोड़े बहुत रह गए वो आज शाम को पहले कंप्लीट होंगे, फिर रिवीजन होगा, फिर डाउट क्लियरिंग होगा, फिर कल हमारा प्रैक्टिस सेशन है। वो यहाँ याद रखिए, कल हमारा प्रैक्टिस सेशन है, उसको मिस नहीं करना है। PYQs उसमें होंगे एंड मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। तो आज मैं आपको साइटोस्केलेटन छोड़ूंगी भी नहीं, ये मत सोचना कि आधा छोड़ दूंगी। आज साइटोस्केलेटन का ओवरऑल आइडिया आपको दिया जाएगा, ठीक है, जितना कर पाएंगे हम 30 मिनट्स में। तो साइटोस्केलेटन क्या करता है, तो 3 तरह का है, मैंने अभी बोला। एक्टिन फिलामेंट, जिसको बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो जो एक्टिन फिलामेंट या माइक्रोफिलामेंट है, दिस इज फर्स्ट टाइप, देन माइक्रोट्यूब्यूल, देन इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। तो एक्टिन फिलामेंट जो है दैट इज थिक, ठीक है, इट इज वेरी थिन एंड दिस इज इंटरमीडिएट ऑफ थिक, इंटरमीडिएट है इसकी थिकनेस, ठीक है। ये 3 तरह के हैं जिसकी वजह से सेल को सब कुछ मिलता है, ठीक है। अब बाकी मैंने बहुत सारे काम करने में हेल्प मिलता है, आप एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन, एक सेकंड में डिलीट कर दूं। आप आज की क्लास देखेंगे ना तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आधा है, आप खुद देखिए आज। तो सेल का बहुत सारे मैंने फंक्शंस बोले जो कि जिसमें सेल को साइटोस्केलेटन हेल्प करता है, ठीक है। तो एक्टिन फिलामेंट के बारे में पहले देखते हैं। एक बार ये क्वेश्चन आया था, शायद 2019 में आया था, जब फंक्शंस दिए गए थे एक्टिन और माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट ऐसे दिए थे, उनके फंक्शन थे, उसको लेबल करना था, 19 में आया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या इनके फंक्शंस है। सबसे पहले एक्टिन फिलामेंट का फंक्शन क्या है, एक एक करके बात करेंगे। Actin filaments determine the shape of the cell surface and are necessary for whole cell locomotion. And they also drive the pinching of one cell into two. तो 3 फंक्शन है एक्टिन फिलामेंट्स के, एक एक करके देखते हैं। मैम डीएनए के बाद क्या स्टार्ट करोगे? पुनः मैं डीएनए के बाद मंडे से, संडे को मेरी क्लास नहीं होगी, मंडे से रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। रेप्लिकेशन का बेसिक, फिर प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन, ट्रांसक्रिप्शन, फिर करेंगे ट्रांसलेशन। मैं पूरा कंप्लीट करूंगी, डोंट वरी। तो एक्टिन फिलामेंट क्या क्या करता है, एक्टिन फिलामेंट के फंक्शंस क्या क्या है। सबसे पहला है, इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल सरफेस। देखिए अगर ये सेल है, ठीक है, इसके नीचे सेल के सरफेस, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे के एरिया को कहा जाता है कॉर्टेक्स, ठीक है, इसको कहा जाता है कॉर्टेक्स। तो ये कॉर्टेक्स में होता है एक्टिन फिलामेंट, ये बात याद रखिएगा। एक्टिन फिलामेंट कॉर्टेक्स में। एक्टिन फिलामेंट दिखता कैसा है, अगर चाहते हैं तो यहाँ पे एक बार पहले देख लेते हैं तीनों। ये देखिए एक्टिन फिलामेंट इस तरह से दिखता है, ये एक्टिन फिलामेंट है। मैंने बताया कि फिलामेंटस प्रोटीन्स है कुछ जिसकी वजह से सेल को स्ट्रेंथ मिलता है। तो सबसे पहला है, पहले हम देख लेते हैं कैसा दिखता है, फिर फंक्शन देखेंगे। एक्टिन फिलामेंट को कहते हैं माइक्रोफिलामेंट। कैसे याद रखना है वो भी मेरे साथ सीखिए। और ये है थिक, और ये सब यूनिट से बना है जिसको बोलते हैं एक्टिन प्रोटीन। तो बहुत सारे एक्टिन प्रोटीन्स मिलके एक एक्टिन फिलामेंट बनाते हैं। क्या क्या, ये देखिए, ये एक एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे ग्लोबुलर प्रोटीन्स जिनको कहा जाता है जी एक्टिन या ग्लोबुलर एक्टिन, दे जॉइन टू फॉर्म लॉन्ग फिलामेंट कॉल्ड एज एफ एक्टिन और फिलामेंटस एक्टिन। तो जी एक्टिन जो है, बहुत सारे जी एक्टिन जॉइन टू फॉर्म वन एफ एक्टिन और फिलामेंटस एक्टिन। और 2 फिलामेंटस एक्टिन जब एक दूसरे से हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कॉइल फॉर्म में, तब उसे कहा जाता है एक्टिन फिलामेंट या माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। तो माइक्रोफिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट क्या है, डीएनए की तरह 2 हेलिक्स है। एक हेलिक्स जी एक्टिन से बना होता है, दूसरा भी जी एक्टिन। जी एक्टिन क्या है, एक टाइप का प्रोटीन है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो जी एक्टिन या जी एक्टिन जो है, ये मिलके एफ एक्टिन बनाते हैं। 2 एफ एक्टिन मिलके एक एक्टिन फिलामेंट बनाता है, ठीक है। तो मेनी जी एक्टिन लिख लो अपनी कॉपी में, मेनी जी एक्टिन, 1 एफ एक्टिन, फिर 2 एफ एक्टिन मिलते हैं, 2 एफ एक्टिन फिलामेंट्स मिलते हैं और बनता है 1 एक्टिन फिलामेंट, ठीक है, ठीक है। फिर इसकी डायमीटर कितनी है, तो इसकी डायमीटर आप बोल सकते हैं 7 नैनोमीटर है, ठीक है।
और ये देखिए सेल में कैसे प्रेजेंट होता है। सेल में ज़्यादातर ये याद रखेंगे जस्ट सेल सरफेस के नीचे प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पे इस एरिया में, मैं दूसरा कलर लेती हूँ पेन का। ये देखिए, ये देखिए, ये सब एक्टिन है। एक्टिन जहाँ पे प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे, उसको कहते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, ये हो गया एक्टिन। तो एक्टिन क्या किससे बना है? एक्टिन फिलामेंट को हम माइक्रोफिलामेंट भी कहते हैं। ये थिक फिलामेंट है। ये किससे का बना होता है? एक्टिन प्रोटीन से बना होता है। कौन से एक्टिन प्रोटीन से? ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन से, जिसे हम जी एक्टिन कहते हैं। बहुत सारे जी एक्टिन मिलके एक फिलामेंटस एक्टिन बनते हैं। मैम ओके, देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एज ट्यूब्यूलिन। जिस तरह से एक्टिन फिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन्स, वैसे ही माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एज ट्यूब्यूलिन। यहाँ देख सकते हैं। एंड ये क्या है? ये हेलिकल फिलामेंट है। ये हेलिकल है। एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के, एक फिलामेंट दूसरे फिलामेंट को इस तरह से डीएनए की तरह कॉइल होता है। तो ये एक हेलिकल प्रोटीन है, सॉरी हेलिकल फिलामेंट है। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, ये एक हॉलो सिलेंडर है। इस तरह से लंबा एक हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर। और ये बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। दो तरह के ट्यूबुलिन होते हैं, अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन। देख सकते हैं यहाँ पे दो कलर में है, लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन। और अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन मिल के एक पूरा एक सिलेंडर बनाते हैं। ये पूरा एक सिलेंडर, मतलब इस तरह से एक सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। ठीक है, और इसका डायमीटर है 25 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये सिलेंडर बना होता है और ये इस तरह से सेल में दिखाई देते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन देखेंगे, पहले देख लेते हैं कैसे दिखते हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये है हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। जिस तरह से एक्टिन फिलामेंट बना था एक्टिन प्रोटीन से, माइक्रोफिलामेंट बना था ट्यूबुलिन प्रोटीन से, उसी तरह से इंटरमीडिएट फिलामेंट बना होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट बना होता है बहुत सारे प्रोटीन से, उनके नाम अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, एक इंटरमीडिएट फिलामेंट का एग्जांपल ले लेते हैं, लैमिनिन। आपको पता होगा कि न्यूक्लियस के सरफेस के नीचे, न्यूक्लियस, ये हमारा अगर न्यूक्लियस है तो ये उसका मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे एक ऐसे मेश की तरह स्ट्रक्चर होता है, मेश की तरह स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे देखिए ये वाला डायग्राम, ये वाला फोर्थ वाला, ये देखिए, ये इस तरह से मेश बनाया हुआ रहता है, मतलब ऐसे पूरा जाल की तरह स्ट्रक्चर बनाया हुआ रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे। ठीक है, वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट, उसको कहा जाता है लैमिनिन। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट बहुत सारे टाइप के हैं। एक टाइप का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, लैमिना। तो लैमिना जो एक एग्जांपल ले लेते हैं, लैमिनिन। लैमिनिन क्या करता है? लैमिनिन प्रोटीन एक टाइप का इंटरमीडिएट फिलामेंट है जो कि ऐसे मेश बनाता है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है और उसको बोलते हैं न्यूक्लियर लैमिना। ठीक है, ये लैमिनिन प्रोटीन से बना होता है और लैमिनिन प्रोटीन एक टाइप का इंटरमीडिएट फिलामेंट है। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या है? जिस तरह से एक्टिन फिलामेंट एक्टिन ग्लोबुलर एक्टिन से बना है और माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है, वैसे इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है? देखिए, माइक्रोट्यूब्यूल किससे बनाता है? ग्लोबुलर प्रोटीन ही, जिसको हम ट्यूबुलिन बोलते हैं, अल्फा बीटा दो तरह के। एक्टिन फिलामेंट किससे बना होता है? जी एक्टिन, वो भी ग्लोबुलर है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि एक्टिन एंड माइक्रोट्यूब्यूल, एक्टिन फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल, ये दोनों ग्लोबुलर प्रोटीन्स इनके सब यूनिट्स हैं। लेकिन इंटरमीडिएट फिलामेंट के जो सब यूनिट्स हैं वो ऐसे फाइब्रस होते हैं। यहाँ देख सकते हैं इनके सब यूनिट्स, यहाँ देख सकते हैं, ये एक सब यूनिट है, 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 ये एक सब यूनिट है। तो ये सारे सब यूनिट्स होते हैं, इलोंगेटेड एंड फाइब्रस सब यूनिट्स होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट के, और वो ऐसे कॉलम्स की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे यहाँ पे दिख रहा है। उसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता है। और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये जो प्रोटीन्स है ये बहुत सारे टाइप के होते हैं, बहुत सारे। इनका पर्टिकुलर हम जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एक एक तब दिखा जाएगा। एक एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया, लैमिनिन प्रोटीन। ठीक है, यहाँ देखिए लैमिनिन प्रोटीन से ये बना है फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसा स्ट्रक्चर बहुत सारा अरेंज हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे।
मैम एक्टिन पॉलीमर बनने के लिए कौन से ऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज होते हैं? बेटा एक्टिन पॉलीमर बनने के लिए एटीपी ही यूज होता है। एक्टिन प्रोटीन जो है कहाँ गया, हाँ, जो ग्लोबुलर प्रोटीन है इनके पास फॉस्फेट या एटीपी रहता है, उसके ही यूज से ये एक दूसरे से न्यूक्लिएशन करते हैं और फिर लंबे लंबे ऐसे फाइबर्स बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, अब देखिए एक सेल के अंदर में कैसा होता है, ये देखिए, ये सेल मूवमेंट यहाँ पे दिखाया जा रहा है, सेल मूवमेंट। और मैंने आपको बताया कि सेल मूवमेंट के लिए एक्टिन फिलामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिन फिलामेंट या माइक्रोफिलामेंट। तो एक्टिन फिलामेंट या माइक्रोफिलामेंट का हमने तीन फंक्शंस पूरा एकदम अच्छे से देखा था। क्या क्या? इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल सरफेस, इट इज नेसेसरी फॉर होल सेल मूवमेंट एंड ऑल्सो ड्राइव द पिंचिंग ऑफ वन सेल इंटू अनदर। ये तीन चीज़ें आपको दिमाग में बिठा के रखनी है। एक्टिन फिलामेंट का फंक्शन क्या क्या? इट डिटरमाइन द शेप ऑफ सेल सरफेस, then it is necessary for whole cell locomotion and drive the pinching of one cell into another। यहाँ पे एक डायग्राम में होल सेल लोकोमोशन को दिखाया गया है। ये देखिए, ये एक होल सेल लोकोमोशन दिखाया गया है। यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट की वजह से देखिए कुछ स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ये देखिए, ये है फिलोपोडियम, ये देखिए लैमेलोपोडियम है, और देखिए ये सेल कॉर्टेक्स दिखा रहा है। सेल कॉर्टेक्स मैंने क्या बताया, सेल, अगर ये सेल 3 डायमेंशनल है तो उसके जस्ट मेम्ब्रेन के नीचे के एरिया को कॉर्टेक्स कहते हैं। और हमेशा याद रखिएगा वहाँ पे एक्टिन फिलामेंट भरा होता है। अगर ये मेम्ब्रेन है तो इसको अगर खोलेंगे, अगर ये मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे खाली एक्टिन फिलामेंट भरा होगा, उसको क्या कहा जाएगा? सेल कॉर्टेक्स। उस एरिया को कहा जाएगा सेल कॉर्टेक्स। तो देखिए यहाँ पे इसलिए सेल कॉर्टेक्स दिखाया गया है। और एक्टिन फिलामेंट क्या होता है, देखिए इस तरह से अगर एक्टिन फिलामेंट है, जी एक्टिन, और इस तरह से बहुत सारे जी एक्टिन मिलके एक एफ एक्टिन बना है। ठीक है, ये क्या होता है, जी एक्टिन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और इसके एक एंड से समझ लीजिए ये इस सेल को इस तरफ जाना है। तो इस तरफ में जो भी एक्टिन फिलामेंट्स होंगे, इस तरफ में बहुत सारे जी एक्टिन मिल के इसको इलोंगेट करेंगे और यहाँ से जी एक्टिन छोटे निकलते जाएंगे। मतलब एक एंड से जी एक्टिन जुड़ते जाते हैं और एक एंड से कम होते जाते हैं। तो एक समझ लीजिए सेल को इस तरफ बढ़ना है तो यहाँ पे जी एक्टिन जुड़ते जाएंगे, जिससे ये लंबा होता जाएगा और यहाँ से छोटे होते जाएंगे। और इसी वजह से सेल कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे ये प्रेजेंट होता है और ये सेल को एक्सटेंशन देने में हेल्प करता है। तो एक्सटेंशन दो तरह से होता है, देखिए, एक फिलोपोडियम बनता है, एक होता है लैमेलोपोडियम। फिलोपोडियम क्या है? नैरो स्ट्रक्चर्स, और लैमेलोपोडियम देखिए क्या है, इट इज़ वाइड स्ट्रक्चर। तो लैमेलोपोडियम जो होता है वो बनता है और फिलोपोडियम बनता है, जिस वजह से सेल आगे बढ़ पाता है। तो सेल को आगे बढ़ना है तो जो भी एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो एक तरफ से लंबे होते जाएंगे और यहाँ से छोटा होते जाएगा। मतलब यहाँ से एक्टिन जो जी एक्टिन है, जी एक्टिन वो टूट के भागते रहेंगे और यहाँ पे ऐड होते रहेंगे, इस एंड में ऐड होते रहेंगे। ये प्लस एंड है, ये माइनस एंड है, इसको बार्ब्ड एंड कहते हैं और इसको बोलते हैं पॉइंटेड एंड। ठीक है, इसी को कहा जाता है ट्रेडमिलिंग। ट्रेडमिलिंग क्या है? हम मतलब ट्रेडमिलिंग क्या है? कंटिन्यूसली एक एरिया से लंबा, एक एरिया से छोटा। तो यहाँ से जी एक्टिन बाहर जाते जा रहा है, हट रहा है, और यहाँ पे जी एक्टिन ऐड होते जा रहा है। तो इसकी वजह से ये सेल में फिलोपोडियम बन रहा है। देखिए ये भी जी एक्टिन की वजह से बन रहा है। ये लैमेलोपोडियम इस एरिया को कह रहे हैं। ये देखिए, ये लैमेलोपोडियम है, ये फिलोपोडियम है। तो ये दो स्ट्रक्चर्स बना रहा है जी एक्टिन फिलामेंट या माइक्रोफिलामेंट। तो फिलोपोडियम पॉइंटेड है और लैमेलोपोडियम देखिए थोड़ा सा वाइड एरिया है। ठीक है, तो इस वजह से सेल को क्या हुआ, थोड़ा सा एक्सटेंशन मिला। ठीक है, इसके बाद एक तरह के फाइबर्स होते हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रेस फाइबर्स। अब ये स्ट्रेस फाइबर्स इलोंगेट हुए। ठीक है, अब इसके, ये देखिए ये न्यूक्लियस है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, तो इसके बाद जो मायोसिन फिलामेंट्स है, आपको पता है मेम्ब्रेन मसल के कॉन्ट्रैक्शन में एक्टिन और मायोसिन का कितना रोल है। मायोसिन और एक्टिन कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं ना, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, जिस वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है हमारा। एक्टिन मायोसिन स्लाइडिंग फिलामेंट स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। मायोसिन और एक टाइप का प्रोटीन है, अलग टाइप का, वो साइटोस्केलेटन नहीं है। तो क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट, ये जो एक्टिन फिलामेंट है
इसके ऊपर नीचे मायोसिन फिलामेंट्स रहते हैं इस तरह से, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपने देखा होगा। तो मायोसिन फिलामेंट्स के और एक्टिन फिलामेंट की वजह से याद रखिए फिलोपोडियम और लैमेलोपोडियम बना, मतलब मूवमेंट की शुरुआत हुई, ठीक है। अब ये सेल मूव करेगा एक्टिन मायोसिन के स्लाइडिंग की वजह से, और स्ट्रेस फाइबर की वजह से ये सब कोऑर्डिनेट हो पाएगा। तो इस तरह से एक्टिन फिलामेंट जो है वो सेल मूवमेंट में हेल्प करता है। तो एक काम हो गया हमारा कि सेल मूवमेंट में कैसे एक्टिन फिलामेंट हेल्प करता है। मैम एक्टिन मेम्ब्रेन के नीचे होता है, यस, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे, मतलब अगर ये सेल है, मेम्ब्रेन को निकाल दिया तो मेम्ब्रेन के अंदर हमको एक नेटवर्क दिखेगा एक्टिन फिलामेंट का। उसके अलावा भी सेल में साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे होता है, जिसको बोलते हैं हम कॉर्टेक्स, ठीक है। मूवमेंट में कैसे हेल्प करता है आपको पता चला। सेल को एक्सटेंशन में हेल्प करता है, कैसे, फिलोपोडियम और लैमेलोपोडियम बनाता है। ये एक WBC है फॉर एग्जांपल, और ये अटैक करना चाहता है, यहाँ पे एक बैक्टीरिया है उसके ऊपर, तो वहाँ पे मूव करेगा ना, सूडोपोडिया बनाएगा। उसी तरह से बैक्टीरिया भी जब सूडोपोडिया बनाते हैं उसमें भी हेल्प करता है एक्टिन फिलामेंट। तो एक्टिन फिलामेंट हेल्प करता है फिलोपोडियम और लैमेलोपोडियम बनाने में, और उसके बाद रोल आता है मायोसिन प्रोटीन का भी, मायोसिन फिलामेंट का भी, और एक्टिन मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते करते वो सेल धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। तो एक्टिन का रोल खत्म हो गया, सेल मूवमेंट में हमको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या रोल है वो देखना है। 3 रोल हमने देखे थे। तो मेंटेन द शेप ऑफ सेल सरफेस, ऑफ कोर्स वो सेल की शेप को मेंटेन करेगा, उसके नीचे जस्ट प्रेजेंट है, तो वो देखेगा कि सेल का एग्जैक्ट शेप कैसा होना चाहिए, वो ऐसे अंदर तो नहीं घुस गया, वो ठीक से है कि नहीं, ये मेंटेन करेगा, ठीक है। उसके बाद ड्राइव द पिंचिंग ऑफ वन सेल इनटू अनदर, मतलब समझ लीजिए ये एक सेल है, अब ये डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग की तरह स्ट्रक्चर बनेगा। सेल डिवीजन जब खत्म हो जाता है, माइटोसिस जब खत्म हो जाता है और साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है, उसमें सेल डिवाइड करता है, तो ये जो सेल है, इनके 2 सेल के बीच में एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनता है, और फिर 2 सेल बनते हैं। ये जो रिंग है ये भी एक्टिन की वजह से बनता है, और इसी वजह से, मतलब 2 सेल हैं, अब वो 2 सेल अलग हो रहे हैं, रिंग बनते जा रहे हैं, वहाँ पे बीच में रिंग की वजह से वो अलग होते जा रहे हैं। ये भी होगा एक्टिन फिलामेंट की वजह से। तो एक्टिन फिलामेंट का 3 फंक्शन हमेशा याद रहेगा हमको। मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल सरफेस, नेसेसरी फॉर होल सेल लोकोमोशन, एंड ड्राइव द पिंचिंग ऑफ वन सेल इनटू 2, मतलब एक सेल से 2 सेल बनाने में, मतलब साइटोकाइनेसिस के टाइम में एक्टिन फिलामेंट हेल्प करता है, ठीक है। अब आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन and they are of 2 type, alpha beta, and alpha beta join together to form a hollow tube like structure, ठीक है। and microtubule is made up of tubulin, इस तरह से actin filament is made up of actin protein, microtubules are made up of tubulin। इसका फंक्शन क्या है वो याद रखना है हमेशा। it determine the position of membrane enclosed organelles, direct intracellular transport, and form the mitotic spindle that segregates chromosomes during cell division। 3 फंक्शन याद रखना है। कैसे कैसे वो समझा देते हैं, कहानी से समझ में आ जाएगा। माइक्रोट्यूब्यूल दिखता कैसा है, अभी तो देखा था हमने एक डायग्राम में, ये देखिए, ये इसमें भी यही होता है, एक तरफ से ऐड होता है सारे और एक तरफ से लॉस होता है, यही होता है इसमें भी। तो इससे इसका डायनामिक्स मेंटेन रहता है। आगे की तरफ अगर बढ़ना है इसको तो वो लॉस होता है एक तरफ से, ऐड होता है एक तरफ से, ठीक है। अब ये जो है ये वायर की तरह पूरे सेल में होता है, ये पूरे ट्यूब्स जो है ये इस तरह से पूरे सेल में बिखरे हुए रहते हैं हर जगह पे, ठीक है। अब ये करते क्या है, अब इनका फंक्शंस जो है वो कैसे करता है वो चेक करते हैं। जैसे समझ लीजिए ये एक सेल है, तो ऑर्गेनेल को समझ लीजिए ये न्यूक्लियस है, गोल्गी बॉडी यहाँ है, इस गोल्गी बॉडी को वहाँ से यहाँ मूव करना है, और यहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ट्यूब्यूल्स के ऐसे तार हैं बहुत सारे। अब साइटोस्केलेटन जो भी है वो एक और चीज होती है, उसके बिना काम नहीं कर पाते, उनको बोलते हैं मोटर प्रोटीन्स या एक्सेसरी प्रोटीन्स, ठीक है। मोटर प्रोटीन्स बेसिकली एक एग्जांपल अगर ले तो डायनिन, काइनेसिन, ऐसे बहुत सारे मोटर प्रोटीन्स है, ठीक है। इनका डिटेल में रोल जब डिटेल पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो डायनिन, काइनेसिन, ये सारे मोटर प्रोटीन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये इस तरह से चलते हैं, इन माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट्स के ऊपर इस तरह से वॉक करते हैं, और ये मोटर प्रोटीन्स अपने साथ में सामान लेके जाते हैं। कौन सा सामान, प्रोटीन्स को लेके जाते हैं, जो कि
वेसिकल्स में भरे हुए हैं। जैसे यहाँ पे समझ लीजिए माइक्रोट्यूब्यूल इस तरह से पूरा हर जगह है। अब इस गोल्गी बॉडी को यहाँ से यहाँ जाना है। ये क्या करेगा, यहाँ पे मोटर प्रोटीन के ऊपर चढ़ जाएगा और ये मोटर प्रोटीन चल चल के इसको यहाँ से यहाँ ला देगा। ठीक है, तो इंट्रास मेम्ब्रेन पोजीशन ऑफ मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड वेसिक ऑर्गेनेल्स, मतलब ऑर्गेनेल्स सेल में कहाँ प्रेजेंट होगा ये डिपेंड करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स पे, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स पे आसानी से ऐसे ऐसे वॉक करते हैं कौन, मोटर प्रोटीन्स, इस तरह से वॉक करके जाते हैं। ठीक है, अब इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट भी ऐसे ही, जैसे समझ लीजिए गोल्गी बॉडी से कुछ प्रोटीन्स को पैक करके हमें राइबोसोम की तरफ भेजना है या लाइसोसोम की तरफ भेजना है, तब भी यही होगा। गोल्गी बॉडी से वो प्रोटीन बाहर आएगा वेसिकल्स में कंप्लीट भर के, ये चढ़ जाएगा मोटर प्रोटीन्स के ऊपर और ये मोटर प्रोटीन्स माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर चल चल के चले जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे और ये वाला मोटर प्रोटीन इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, उसके बाद दे फॉर्म द माइटोटिक स्पिंडल दैट सेग्रीगेट्स क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिविजन। अच्छा, आपने सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के बारे में सुना होगा। यहाँ देखिए, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के बारे में सुना होगा, वो क्या है, इफ साइटोस्केलेटन इज रोड देन मोटर प्रोटीन इज जस्ट लाइक ए कार। यस, या आप वो केबल कार सोच सकते हैं, केबल्स हो गए हमारे, मैं जो शुरू में एग्जाम्पल दिया था, केबल्स हो गए हमारे साइटोस्केलेटन और इसके ऊपर जो कार है, ये कार हो गया। केबल कार में बैठ के नहीं जाते हैं, माउंटेन्स में ट्रैवल नहीं करते हैं, वही ये कार हो गया हमारा, क्या हो गया, ये कार हो गया हमारा कार्गो। कार्गो कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनेल और प्रोटीन कुछ भी हो सकता है, और ये जो है ये हो गया हमारा मोटर प्रोटीन। ये एग्जांपल ले सकते हैं, ये तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो कार्गो में ये जो कार्गो है इसके अंदर ही हम बैठते हैं और जाते हैं आते हैं और ये उसको चल के लेके जाता है। ठीक है, चलिए माइक्रोट्यूब्यूल्स का ये तो पता चल गया, इट हेल्प्स इन इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द पोजीशंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, ये भी पता चल गया। अब हमें देखना है कि कैसे वो क्रोमोसोम्स को सेग्रीगेशन में हेल्प करता है। मैम चल सकता है यूपीएससी एनडीए के लिए, हाँ ये यूपीएससी एनडीए के लिए भी चल सकता है। आपको एक बेसिक आइडिया बस मैं देना चाह रही हूँ कम समय में। ऑलरेडी 30 मिनट्स बीत चुका है, मैं फिर भी 30 मिनट्स टारगेट था मेरा, तो 30 मिनट्स के लिए उतना ही कंटेंट लेके आई थी। ठीक है, तो क्या होगा, ये चलेगा उसके लिए क्योंकि यहाँ पे बेसिक आइडिया ही दिया जा रहा है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के फंक्शन क्या क्या है, helps in location of maintaining the position of membrane bound cell organelles, transport, intracellular transport and chromosome segregation during cell division। ये तीनों फंक्शन है माइक्रोट्यूब्यूल का। एक्टिन फिलामेंट का फंक्शन क्या था, मेंटेनिंग द सेल शेप, देन होल सेल मूवमेंट था कि नहीं, उसके बाद क्या था क्या था और एक कुछ था। तो इस तरह से एक्टिन फिलामेंट के 3 फंक्शन थे, माइक्रोट्यूब्यूल्स के 3 फंक्शन है। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल के जो फंक्शन जो मैंने बोला, सेग्रीगेशन, मतलब जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डीएनए क्या होता है, डबल हो जाता है, 46 से 92 हो जाता है। इस डीएनए को फिर 2 हिस्सों में बांटा जाता है, 46 एंड 46, 2 डॉटर सेल्स को दे दिया जाता है। तो ये जो डिवीजन हो रहा है डीएनए का, वो डिपेंड करता है हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर। कैसे, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का आपने 2 वर्ड सुने होंगे, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम सुना होगा। यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस के जस्ट पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, ये है सेंट्रोसोम, ये एक सेंट्रोसोम है। ठीक है, ये एक सेंट्रोसोम है, इसके अंदर आपको यहाँ दिख रहा होगा एक स्ट्रक्चर, ये 2 दिख रहा है राइट एंगल्स में, ये है हमारा सेंट्रियोल। ठीक है, ये है हमारा सेंट्रियोल, ये है हमारा सेंट्रोसोम, ये पूरा टोटल है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल में फ़र्क क्या है, तो सेंट्रोसोम इज इक्वल टू 2 सेंट्रियोल्स प्लस पेरी सेंट्रियोलर स्पेस। ये दोनों मिला के एक सेंट्रोसोम बनता है, मतलब ऐसे सेंट्रोसोम है राइट एंगल में, इसके आसपास एक मैट्रिक्स है, फिर मैट्रिक्स है, बस हो गया, इसके आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये मत सोचना कि मेम्ब्रेन है, बस इसके आसपास मैट्रिक्स है। ये हो गया हमारा सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम हो गया पूरा स्ट्रक्चर,
उसके अंदर जो राइट एंगल्स में हो गए वो है हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स या सेंट्रियोल बोल सकते हो। ये जो है यही हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और एक्चुअली में ये दोनों सेंट्रियोल है और सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। माइक्रोट्यूब्यूल कैसा होता है देखा ना आपने, हॉलो स्ट्रक्चर। ये है ना हमारा सेंट्रियोल, सॉरी ये है ना हमारा माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स से, बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल से एक सेंट्रियोल बनता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, ये एक सेंट्रियोल है समझ लीजिए, इसमें बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और दो सेंट्रियोल से एक सेंट्रोजोम बनता है, ठीक है। सेंट्रोजोम क्या है, सेंट्रोजोम में सेंट्रियोल के अलावा आसपास में मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। अभी मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ मेनी प्रोटीन्स, आयंस एंड लिपिड्स, बहुत सारी चीज़ों से बना होता है वो मैट्रिक्स। तो एक जेल जैसा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर दो रॉड हैं, वो रॉड फिर बहुत सारे रॉड से बने हैं, वो रॉड्स को कहा जाता है सेंट्रियोल। उसके अंदर बहुत सारे रॉड्स हैं जिनको माइक्रोट्यूब्यूल कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे छोटे छोटे प्रोटीन के ऐसे देखो दिख रहा होगा तुम लोग को, इसको कहा जाता है न्यूक्लिएटिंग साइट्स या गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे प्रोटीन्स है, कुछ प्रोटीन्स हैं सरफेस पे, किसके, सेंट्रोजोम के सरफेस पे। सेंट्रोजोम के सरफेस पे गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, ऐसे रिंग्स हैं, किसके, गामा ट्यूबुलिन नाम के एक प्रोटीन के, गामा ट्यूबुलिन नाम के प्रोटीन के रिंग्स है बहुत सारे, कहाँ पे, सेंट्रोजोम के सरफेस पे, बहुत सारी जगहों पर, ठीक है। सेंट्रोजोम क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका मेम्ब्रेन नहीं है, ये बात याद रखना, उसका मेम्ब्रेन नहीं है। पुनः प्रोकैरियोटिक सेल में सेंट्रोजोम होता है, भावना, यस मैम। अच्छा बेटा एक सेकंड, मैं पहले ये कंप्लीट कर लूँ फिर आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। तो ये हो गया हमारा सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम क्या है, एक मेम्ब्रेन नहीं होता है उसका, एक बस जेल जैसा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर दो सेंट्रियोल है और उसके सरफेस पे बहुत सारी जगहों पे रिंग्स बने हुए हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्सेस। और ये जो सेंट्रियोल है ये माइक्रोट्यूब्यूल से बना है, ठीक है। अब ये जो गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्सेस है, इसमें से भी देखो ये क्या निकल रहा है, ये सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स ही हैं, सारा ये टोटल माइक्रोट्यूब्यूल है, ये जो भी निकल रहा है, प्लस ये भी माइक्रोट्यूब्यूल से बना है, ठीक है। अब ये जो निकल रहे हैं इनको बोलते हैं स्पिंडल फिलामेंट्स या स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर भी बना है माइक्रोट्यूब्यूल से, सेंट्रियोल भी बना है माइक्रोट्यूब्यूल से, ठीक है। ये एक अगर सेंट्रियोल है, इसमें बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, डबलेट्स में प्रेजेंट है, वो सब हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो उसके बाद ये सारे स्पिंडल फाइबर्स हैं, ठीक है। अब ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे, हमारा डीएनए पहले सेल में कितने थे 46, अब कितने हो गए 92। अब ये 92 डीएनए फिर दो में हिस्सों में डिवाइड होंगे 46। अब कैसा दिखेगा, ऐसा दिखता है, यहाँ पे एक डीएनए है, यहाँ पे एक डीएनए है, यहाँ पे एक डीएनए मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक डीएनए मॉलिक्यूल है। इस तरह से टोटल कितने स्ट्रक्चर्स हैं 46। इस तरह से टोटल स्ट्रक्चर को मैं रब करके फिर से दिखाती हूँ। सेल डिवीजन के टाइम में क्या होता है वो ध्यान दो। देखो पहले क्या होता है, पहले सेल के पास डीएनए है 46, क्रोमोसोम है 46। अब सेल साइकिल में एंटर करेगा तो फिर क्या होगा, डीएनए डबल हो जाएगा, मतलब हर एक मॉलिक्यूल के पास 4 स्ट्रैंड होंगे। तो अब वो इस तरह से दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर का मतलब है, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी, क्या बोलते हैं, ये सेंट्रोजोम हुआ, सेंट्रल हुआ, ये हुआ हमारा क्रोमैटिड, और ये हुआ हमारा क्या, ये जो सेंट्रल रीजन है, मेरे दिमाग से निकल रहा है, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक प्रोटीन होता है काइनेटोकोर, ठीक है। इस प्रोटीन के साथ में ही ये जो माइक्रोट्यूब्यूल के फिलामेंट्स है ये अटैच होते हैं, काइनेटोकोर के साथ में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, उनसे ये अटैच होते हैं। और ये क्या होता है, डबल हो जाता है। ये एक होता है अनडिवाइडेड सेल में, जब सेल डिवीजन में एंटर करता है ऐसे 2 हो जाते हैं स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये अगर एक सेल है हमारा, ओके, समझ लीजिए ये एक सेल है, यहाँ पे एक सेंट्रोजोम होगा, यहाँ पे एक सेंट्रोजोम होगा,
यहाँ पे एक सेंट्रियोल होगा, यहाँ पे एक सेंट्रियोल, यहाँ पे एक सेंट्रियोल, यहाँ पे एक सेंट्रियोल। सेंट्रियोल बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल से बना है, इनसे बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल बाहर आ रहे हैं जिन्हें हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। और यहाँ पे समझ लीजिए क्रोमोसोम्स का लाइन लगा हुआ है। अब ये इनसे अटैच करेंगे और दोनों तरफ से फिर इस तरह से पुल करेंगे और क्रोमोसोम्स को तोड़ देंगे, जिस वजह से हर सेल के पास एक क्रोमैटिड पहुंचेगा। मतलब एक क्रोमैटिड मतलब एक डीएनए, ये एक क्रोमैटिड है, ये एक क्रोमैटिड है, एक क्रोमैटिड मतलब एक डीएनए, क्योंकि सेल डिवीजन से पहले सिर्फ एक डीएनए था। इंटरफेस से पहले जब सेल इंटरफेस में घुसा तो 2 डीएनए मॉलिक्यूल हो गए। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर अगर होता तो ये यहाँ पे ऐसा बन जाता। समझ में आ रहा है ना आपको? इसके अंदर में हमारा एक क्रोमैटिड मतलब एक डीएनए। इस तरह से क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं और सेंट्रोमेयर यस और फिर वो दोनों सेल्स में इंटर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्रोमोसोम्स को सेग्रीगेट करने में हेल्प करता है माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? तो माइक्रोफिलामेंट क्या क्या करता है? सेल ऑर्गेनेल का पोजीशन मेंटेन करता है, इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और सेल के क्रोमोसोम्स के सेग्रीगेशन में हेल्प करता है। देखिए यहाँ पर एक ये देखिए एक सेंट्रियोल है। ठीक है, ये जो गोल है यहाँ पे वो एक सेंट्रोजोम है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये दिख रहा है ना, यहाँ पे 3 दिख रहा है ना, ये 3 देखिए ऐसे होते हैं ये तीनों। ये देखिए एक लंबा सेंट्रियोल है यहाँ पे, समझ लीजिए। ठीक है, मैंने आपको बताया एक सेंट्रियोल बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है। समझ लीजिए एक सेंट्रियोल है। ठीक है, उसको अगर कट करके देखेंगे तो हमको दिखेगा कि 3 के बंडल हैं, 3 के बंडल हैं। ठीक है, ये जो 3 बंडल है ये माइक्रोट्यूब्यूल है हमारे। देखिए एक माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। तो यहाँ पे 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। डिटेल में पढ़ाने से ये सब आता है। 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स मेक 1 सेंट्रियोल। आई होप मैं क्लियर हूँ। एक सेंट्रियोल 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है और एक सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल होता है। फिर सेंट्रोजोम में क्या होता है, गामा ट्यूबुलिन नाम के प्रोटीन्स का रिंग होता है और उसमें से माइक्रोट्यूब्यूल्स बाहर आते हैं। बस एक माइक्रोट्यूब्यूल फिर बाहर आता है जो हमने देखा था। और यहाँ पे ये बना है, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है। इस तरह से कितने ट्रिपलेट्स हैं? 9 ट्रिपलेट्स एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए ये एक ट्रिपलेट है। इस तरह से कितने ट्रिपलेट है? देखिए 9 ट्रिपलेट्स हैं। और ये जो ट्रिपलेट्स है ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स के। तो यहाँ पे ट्रिपलेट, यहाँ पे भी एक ट्रिपलेट। तो दिस इज अ ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, दिस इज ऑल्सो ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। इस तरह से 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल मेक 1 सेंट्रियोल। 2 सेंट्रियोल्स एट राइट एंगल मेक 1 आर प्रेजेंट इनसाइड 1 सेंट्रोजोम। और याद रखेंगे सेंट्रोजोम इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, यस 9+3 अरेंजमेंट, वेरी गुड। 9+3 9+2 इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, अच्छा उसके आगे बढ़ते हैं। इस तरह से देखिए प्रेजेंट होता है। ये देखिए सेंट्रियोल्स है। ठीक है, देखिए ये देखिए ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल के बंडल्स है। देखिए यहाँ पे एक बंडल है, ये दूसरा बंडल है, यहाँ पे एक बंडल है, यहाँ पे एक बंडल है। ये देखिए मोटर प्रोटीन्स है जो कि इनके ऊपर घूमने की वजह से ये इस तरह से स्लाइड भी करते हैं। और इसी तरह से स्लाइड करने की वजह से सीलिया और फ्लैजेला भी मूवमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स ही सीलिया और फ्लैजेला भी बनाता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या क्या करता है? सेल ऑर्गेनेल का पोजीशन मेंटेन करता है, सेल ऑर्गेनेल का मूवमेंट मेंटेन करता है, इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, सीलिया फ्लैजेला बनाता है वही, और स्पिंडल फाइबर भी वही बनाता है। स्पिंडल फाइबर बनाता है तो क्रोमोसोम्स डिवाइड करते हैं, सेल डिवीजन बंद होता है। सीलिया फ्लैजेला जो मूव करते हैं, फ्लैजेला कैसे मूव करता है? ऐसे ऐसे करता है ना, और सीलिया कैसे? ऐसे 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 फास्ट करता है। आप अगर एक स्पर्म देखेंगे तो एक स्पर्म का क्या है, उसका जो टेल होता है वो किससे बना होता है? फ्लैजेला से, है ना। तो ये भी मूवमेंट जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? 2 ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के देखिए बंडल्स हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2।
उनके बीच में ये देखिए, ये जो है ये सारे मोटर प्रोटीन्स है, डाइनिन काइनेसिन नाम के मोटर प्रोटीन्स होते हैं, ये सारे मोटर प्रोटीन्स हैं। ये देखिए इनके ऊपर चल रहे हैं, है ना, जिस वजह से देखिए चलने की वजह से ये देखिए ऊपर नीचे हो रहे हैं। और एक सीलिया फ्लैजेला में इसी तरह से, ये अगर एक सीलिया है समझ लीजिए, इसको कट किया तो उसके अंदर ऐसे ही बंडल्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, और वो फिर इस तरह से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, और इसी वजह से ये सेल को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ये हो गया माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन। उसके बाद आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का। अच्छा, यहाँ पे देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स दे फॉर्म सीलिया विच फंक्शन एज मोटाइल विप्स, और इस तरह से बहुत कुछ है जो मैं समझा चुकी हूँ। अब आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का हमेशा याद रखेंगे, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और ये दूसरों से अलग क्यों है, एक्टिन और मायोसिन से अलग क्यों है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं ये इसलिए दूसरों से अलग हैं क्योंकि इसका जो सब यूनिट्स होते हैं वो ग्लोबुलर नहीं होते हैं जिस तरह से एक्टिन और मायोसिन के ग्लोबुलर होते हैं। इसके जो सब यूनिट्स होते हैं वो फाइब्रस होते हैं, देखा था हमने अभी, इसके सब यूनिट्स फाइब्रस होते हैं, देखिए, ठीक है। और ये ज़्यादातर मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए काम करते हैं। तो ये एक सेल के जैसे, और हाँ, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिस वजह से ये न्यूक्लियस जैसे स्ट्रक्चर, जिनको ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है, उनके मेम्ब्रेन के नीचे ये मेश की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर लैमिना। ठीक है, तो देखिए, इट लाइन द इनर फेस ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव केज फॉर द सेल्स डीएनए। और उसी वजह से सेल जो है वो उस जगह, सेल का जो डीएनए है वो उनसे इंटरेक्शन करने की वजह से एक जगह पे स्टेबल होकर रहता है। इसके अलावा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या करते हैं, तो एपिथेलियल टिश्यू को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या है, हमारे बॉडी के स्किन सरफेस पे जो टिश्यू हो या अंदर का जो हॉलो स्पेस को लाइन किया है वो भी एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू को स्टेबिलिटी भी इंटरमीडिएट फिलामेंट ही प्रोवाइड करता है। कैसे, देखिए, समझ लीजिए ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये दोनों आपको पता है सेल जंक्शन की वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सेल जंक्शन एक अलग सा टॉपिक है, ये पढ़ने के बाद ही सेल जंक्शन ज़्यादा समझ में आता है, साइटोस्केलेटन पढ़ने के बाद। तो देखिए, साइटोस्केलेटन यानी इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या करता है, इस सेल से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ देता है, जिस वजह से जो सारे सेल्स है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है जो सेल्स के कनेक्शन की वजह से बना है, उसको स्ट्रेंथ मिल जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये देखिए सेल जंक्शंस हैं। ठीक है, अब यहीं से ही सारे फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ट्रैवल करते हैं। देखिए, इंटरमीडिएट फिलामेंट ब्लू कलर का है, देखिए, इंटरमीडिएट फिलामेंट इन सेल जंक्शन की वजह से देखिए कनेक्टेड है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो इस वजह से सारे एपिथेलियम को एक स्ट्रेंथ मिलती है इंटरमीडिएट फिलामेंट की वजह से। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट का बहुत सारा टाइप है, उसका डिटेल अलग है, लेकिन मतलब इंटरमीडिएट फिलामेंट जो सब यूनिट से बनते हैं उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। एक मैंने जैसे यहाँ पे दिया लैमिनिन, ठीक है, लैमिनिन प्रोटीन। इस तरह से सारे 3 तरह के जो साइटोस्केलेटन है उनके फंक्शन है। आपको ओवरऑल फंक्शन याद रखना है, एक्टिन का, माइक्रोट्यूब्यूल का एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट का, ओवरऑल स्ट्रक्चर और उनके सब यूनिट्स। मैं आज सिर्फ उसके बारे में बात की, ओवरऑल स्ट्रक्चर, उनके सब यूनिट्स और उनका फंक्शन। ठीक है, और वो फंक्शन कैसे करते हैं, ओवरऑल आज मैंने पूरे चैप्टर का एक समरी दिया है, इसको डिटेल में पढ़ने से फिर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आज की क्लास खत्म है। ये एक बेसिक आइडिया था। ठीक है, अभी 5 बजे हम पढ़ेंगे सेक्शन ए में क्या क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास। इस तरह से हम इस क्लास को एंड करते हैं। मैंने आपको बुक बता दिया है, 895 पेज नंबर में से मैंने सारी चीज़ें निकाली हैं। ठीक है, एल्बर्ट की